This is a subject which is not named max, but it is basically max. We have max 1, we had max 2, max 3, max 4, and this is max 5 you can consider. The subject ka name is optimization. How many of you know what do I mean by optimization? आपको याद होगा we started engineering with complex numbers in math, याद है कि नहीं? Complex numbers था, matrices था, partial derivatives था, derivatives था, we had integration, multiple integration, Laplace, Fourier, सब कुछ. And semester 4 में we had probability also, right? And to end up with math, this is optimization. Remember, optimization is completely different than whatever we have done till date in math. आपने आज तक जितना भी मैथ किया रहेगा ना, उसमें से सबसे अलग ये वाला है. Now, before we continue, anybody here who had done diploma and come to degree? Anybody here who has done diploma and come to degree? Yes, sir. सब डिग्री वाले? हेलो, कोई है क्या जो डिप्लोमा के बाद सेम3 ज्वाइन किया? प्रथमेश सावंत. हाँ बोलो प्रथमेश. हाँ सर, डिप्लोमा टू डिग्री था मैं. अच्छा, अब तुमने कभी आज तक एलपीपी नाम का कोई चीज सुना नहीं रहेगा ना? नहीं सर. ऐसा कभी कुछ सुना है क्या? नहीं सुना ना? नहीं सर. ओके. एनीबॉडी एल्स हु हैज डन डिप्लोमा एंड जॉइन डिग्री जिसने 11 12 नहीं किया रहेगा? तो बाकी हर किसी ने शायद एलपीपी कभी ना कभी किया ही रहेगा. अच्छा, एनीबॉडी जिसने 11 12 किया लेकिन एलपीपी नहीं किया, ये सबसे इंटरेस्टिंग वाला कार्ड. एनीबॉडी जिसने 11 12 किया लेकिन एलपीपी नहीं किया था, या फिर इस तरीके से किया था कि आज बुढ़े नहीं किया था, प्लीज रेज हैंड. हेलो, सबने एलपीपी किया था? आई कैन बिलीव दिस. सौरभ, सौरभ गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? सर आप कैसे हैं सर? जिंदा हूं अभी तक. एलपीपी क्या था क्या? हाँ सर, वो 12th में एक चैप्टर था सर. हाँ, लेकिन आता है क्या वो? टाइम हो गया सर काफी. इसलिए तो पूछ रहा हूँ. 12th में किया था, फिर फर्स्ट सेकंड ईयर में था नहीं ना एलपीपी. था नहीं ना, कभी भी नहीं था. Remember, the basic of this subject was started in 11th and 12th in a chapter called as LPP. Now, definitely it is 2 years back. आपने वो गया सेमेस्टर के याद नहीं रहता, 2 महीने 2 साल पहले का तो दूर की बात होगी. Now we'll take up time and understand, what were the basic that we should know before we start off with the subject. सबसे पहले we'll come to the meaning of the word called as optimization. What do you mean by optimum? Optimum का मतलब is best. Remember, optimum मतलब best. Now, in this entire subject and as a mechanical engineer, अपने को ये बहुत जरूरी है कि अपने को सब्जेक्ट अच्छे से आए. The reason is, whenever we come across any problem, this chapter will teach how will you come to the best solution. Now, best solution मतलब क्या? सबसे पहला चीज, whenever I say best solution, it always means कि there is not one solution. बराबर है? अगर एक ही solution है तो best आएगा. जो solution है ना. मतलब if there is a question, if there is an answer, there is an answer, right? When does the best answer come into picture? Only when we are sure that there are many answers possible, out of which is the best possible answer, that is called as optimization. So remember, in this entire subject, our aim would be to find out optimum solution in various cases. उसमें से एक केस था एलपीपी जो अपने 12th में ना एकदम हल्का सा किया रहेगा. We'll have a revision of that even today. Now we try to understand कि when we require best solution. Now सबसे example, best example is the situation we have today. Take example. Suppose Mumbai ka we have north zone, we have
ईस्ट जोन, वी हैव वेस्ट जोन एंड वी हैव साउथ जोन. डू एग्री? अगर अपने सिटी लिया मुंबई, अपने पास ईस्ट जोन है, अपने पास वेस्ट है, अपने पास नॉर्थ, अपने पास साउथ है, बराबर. आपको याद होगा आज के तारीख में सबसे मेजर न्यूज में हेडलाइन है वो है वैक्सीन, बराबर. सब बोलते हैं वैक्सीन मिलता नहीं, मिलते पूरा दिन लाइन में खड़ा रहा, एंड में आके बोला वैक्सीन नहीं. ना क्यों वैक्सीन नहीं है? द रीजन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इज इंपॉर्टेंट. मतलब सोचो, इफ आई हैव मुंबई सिटी, एक दिन अपने पास 1000 वैक्सीन है, बराबर. 1000 एक दिन में 1000 वैक्सीन है. रिमेंबर 1000 वैक्सीन, इफ एट ऑल आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, एक कॉमन मैन क्या बोलेगा? ठीक है ना, 250 खत्म हो गया ना मैटर. बट रिमेंबर द डिस्ट्रीब्यूशन इफ डन दिस वे, दिस इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे 250, यहाँ पे 250, यहाँ पे 250, यहाँ पे 250, सबको इक्वल मिल गया, राइट? बट रिमेंबर दिस इज अ सोल्यूशन. यू कैन नॉट गारंटी द सोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन. क्यों? डोंट यू फील, हो सकता है ना, टेक एग्जांपल North part is the part which is Mulund Ghatkopar. This is north. Now South Bombay is the part which is Kolaba side. Right? We have eastern side, we have western side. Eastern side is the side on which we have Airoli and all, and western side is the Andheri and Borivali wala side. Now don't you understand कि depending upon where the population is more, vaccine should be supplied more there. अगर South Bombay का population कम है तो यहाँ पे कम. अगर अपने को समझ रहे कि West Bombay का population ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा. अगर नॉर्थ में स्टिल कम है तो यहाँ पे कम, एंड सो ऑन. So don't you feel the vaccination should be always supplied depending upon what is the population? One more thing, हो सकता है कि साउथ बंगाल एडवांस रहेगा, उनका वैक्सीनेशन हो गया रहेगा. अगर यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो गया तो यहाँ पे ज्यादा बेच के फायदा है, उधर बच जाएगा ना. तो वी शुड ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट एवरी पॉसिबिलिटी कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, कहाँ पे कितने का वैक्सीनेशन हो गया, कहाँ पे एज ग्रुप कितना है. So don't you feel based upon all of this, we have to check up कि this 1000 vaccine we should be distributing in what fashion? जरूरी थोड़ी डायरेक्ट इक्वल होना चाहिए. It should be always depending upon the factors that we are looking into. So remember 1000 distributed in 4 places. The best, the most common solution is 250 all places, right? But 250 may be a solution, but it is not the best solution. Best solution will be depending upon the factors that we counter in. So whenever we study optimization, we learn exactly this. कि अपने पास अगर कोई resources है, so that resources we have to distribute into various parts in what proportion and what way. This is what the entire subject is all about. And remember, ये subject का requirement बाकी branches को नहीं, लेकिन mechanical का है. Because whenever you work in industry, आपको ये situation बहुत जगह face करना पड़ेगा. That is the reason you should know this in and out. That is the reason it is built as a separate chapter, subject. इसका नाम भी optimization. Is the meaning of the word optimization and why we study this, is that understandable to, and how different it is from every match that we have done till now? Yes? Okay. कोई doubt? Anyone? Hello? No, sir. This lecture is ना live and interactive. Live तो है, interactive होना चाहिए. Whenever you must join the batch, वो में लिखा रहेगा ना live and interactive. इंटरेक्टिव खाली मैं अकेला बोलेगा थोड़ी होने वाला. हेलो चलो मतलब हाँ सर, तो मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है. एग्जैक्टली. टेक एग्जांपल ना, सपोज वी हैव x1 + 4x2 इज इक्वल टू, सपोज से मैंने बोला 10, बराबर. तो वी कैन हैव x1 = 2, x2 = 2 एज वन ऑप्शन ना. 4 × 2 8 + 2 10, बराबर. We can always have x2 = 1 and x1 = 6, is it not? 1 × 4 is 4 plus 6 is nothing but 10. Then अपने दो solutions. So depending upon what situation we are in, out of the many solutions possible, we have to select that one which is the best one. उसको बोलते हैं optimum solution. ये भी solution, ये भी solution है. So depending upon what situation we are in, we have to select out of the all options possible, which one is the best one. That is called as optimization. Okay, sir. Optimum is not correct. Optimum मतलब कि out of all the correct, which is the best. बराबर है. कैसा रहता है? लास्ट ओवर है, बराबर. 50 ओवर का मैच, अपने पास 4-5 बॉलर है, बराबर. विराट सोचेगा भाई लास्ट ओवर है, अपने कौन से बॉलर को देने का है. ऑल ऑफ देम आर बॉलर्स, राइट. ही विल चेक अप द बेस्ट वन दैट ही कैन ट्रस्ट ऑन. तो वो जो बॉलर को दिया ना, वो है ऑप्टिमम, मतलब जिस पर उसका सबसे ज्यादा भरोसा है वो. So out of every solution possible, we select the best one. That is called the optimization.
अब ये क्या बोलने वाला ठीक है ना, बट whenever you tell, अगर तुमने सपोज tomorrow you are working in a company, you tell मैंने डिसीजन लिया, अब डिसीजन लिया, you cannot take all the decision based on instinct, right? अपने कौन पे प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आपने यही डिसीजन क्यों लिया, राइट? तो ऑन पेपर द प्रूफ इज डन बाय दिस सब्जेक्ट, you have to prove in front of the every other member that why you have taken out of the 10 solution only this solution, इसका जस्टिफिकेशन अपने को आना चाहिए, and this subject teaches you that. ओके सर। बराबर। और कोई? Anybody else? Okay. Now, I told you the basic of this subject was started way back in 11th and 12th in a subject chapter called as LPP. Now, we'll take up a small example and discuss things out before we start continuing. Now, अगर आपको याद होगा, LPP में we had used to have question this way. अपने को बोला रहेगा, समझो मैक्सिमाइज z is equal to x1 plus 3x2, बराबर, और अपने को बोलेगा सब्जेक्ट टू x1 plus 3x2 less than equal to 4, और अपने को बोला रहेगा, समझो x2x1 plus this should be 4x2 less than equal to 5. I'm taking just an example, don't copy anything. और अपने को दिया रहेगा x1 greater than equal to 0, यहाँ पे दिया रहेगा x2 greater than equal to 0. Now, for that guy जिसने डिप्लोमा पहले किया, you must have never done this at all. Before I continue, I'll make every term very clear to you. Remember, this is called an objective function. Objective मतलब अपना एम क्या है, ये मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? तो दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम कि मुझे ये सबसे ज्यादा चाहिए, बराबर। अभी कैसा होता है, नाउ थिंक फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. Suppose as a mechanical engineer, you are into a company which is doing production. Okay, कोई भी चीज का प्रोडक्शन. So remember, problem will be in two categories. One will be your production should be maximum की minimum. सोच के बोलो, अरे बोलते रहो. अगर तुम्हारा बिजनेस है, प्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए? मैक्सिमम, राइट? अच्छा, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए? अगर प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा तो लगेगा ना भाई, तो खर्चा जो है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए सर, कम होना चाहिए ना. मतलब अगर ये Z प्रोडक्शन है तो कंडीशन क्या रहेगा, मैक्सिमम. अगर ये Z कॉस्ट है तो ये क्या रहेगा, मिनिमम. अगर ये Z प्रॉफिट है तो क्या रहेगा, मैक्सिमम. तो रिमेंबर, व्हेनेवर यू वर्क इन अ कंपनी, यू डेवलप, यू शुड ऑलवेज थिंक व्हाट प्रोडक्शन शुड बी मैक्सिमम, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम, कॉस्टिंग शुड बी मिनिमम. तो अगर ये वाला Z कॉस्ट होता तो यहाँ मैक्स की जगह पे क्या था, मिनिमम. ओके, so this is called as objective function. Your objective is to maximize profit, maximize production, but minimize cost. So remember, this is your objective. अगर एक cost रहेगा तो यहाँ आएगा minimum. अगर ये production रहेगा, अगर ये profit रहेगा, this will become maximum. Now remember, this is based upon certain conditions. These are called as constraints. So remember, इसको बोलते हैं constraint, और इसको बोलते हैं objective function. Remember, objective function is what it is. That function जो अपना aim practical है, मतलब if it is profit I want maximum, if I have production I want maximum, if I have cost then it's a minimum, right? So remember, this is the objective function, this is the constraint, and this is called as non-negativity condition. Now, आप में से शायद काफी जन को लगेगा कि नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्यों, मतलब ऐसा क्यों कि x1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस भी तो हो सकता है मैथमेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली जनरली नॉट. मतलब क्या, सोचो x1 x2 इज ट्रक, मतलब अपने पास x1 वाला कोई ट्रक रहेगा, x2 कोई अलग एक टेम्पो रहेगा, ट्रक रहेगा. तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ ट्रक कैन बी नेगेटिव. अपन -2 ट्रक थोड़ी लेके जा सकता ना. You can have 1 truck, 2 truck, maximum, minimum क्या रहेगा, 0. Can you have negative? No. x1 x2 can be machines. मतलब ये रहेगा मशीन A, ये रहेगा मशीन B. तो नंबर ऑफ मशीन once again can never be negative, right? It can be minimum क्या रहेगा, 0. एक मशीन रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, -6 किधर से रहेगा. तो remember, generally x1 x2 ये जो वेरिएबल रहेगा, these are indicating those quantities which generally cannot be negative. Okay.
तो यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैथमेटिकली वी कैन हैव केसेस जहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, बट रिमेंबर प्रैक्टिकली जनरल इट इज नेवर नेगेटिव। ओके, अपन वो भी कंडीशन में जहाँ पे नेगेटिव हुआ तो क्या। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि वी आर बेसिकली हाउ मेनी थिंग्स, 3। वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब जो अपने को चाहिए ज्यादा या कम, एंड डिपेंडिंग अपन जो भी कंडीशन रहेगा उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। और जो भी वेरिएबल रहेगा दैट इज x1 x2 x3 x4 जो भी रहेगा वो यहाँ पर हमने खाली दो के एग्जांपल लिए, तो x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड एज नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो रिमेंबर फॉर एनी ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिस इज द बेसिक स्टेप्स। अपने को सबसे पहले चाहिए रहेगा व्हाट आई वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कंडीशन, एंड दिस इज नथिंग बट द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन। On in shorter words, whatever we have learned before called as LPP. What was LPP? Linear programming problem. Remember, हमने जब 11-12 में किया था वो linear था. Whenever we'll be doing in semester 5, we'll have non-linear also. मतलब अपने पास LPP का n भी लगने वाला, मतलब this will be non-linear programming problem. Okay. तो हमने जो 11-12 में किया था elementary basic called as LPP, we will have an LPP also. Now the guy who has come from diploma, I would request you to copy this first. अगर डिग्री वाले को भी चाहिए रहेगा 11-12 का याद नहीं है, फिर रफली कॉपी करो। सर मैक्सिमम मिनिमम ये मतलब इसको हम लोग क्या क्वांटिटी एंटिटी क्या बोलेंगे सर इसको? क्या बोल रहे हो? एक मिनट लंबे वाला क्लास टाइम था ना, सेकंड टाइम में कौन सा ये अच्छा हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर जो कंडीशन जो मैक्सिमम रहता है मिनिमम रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी या क्वांटिटी? कुछ जो भी रहेगा ना वो तो, अगर वर्ड प्रॉब्लम रहेगा तो दिया रहेगा ना, ये बोलेगा सॉल्व फॉर मैक्सिमम कॉस्ट, आई मीन फॉर मिनिमम कॉस्ट, सॉल्व फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, जो भी। अच्छा, और ये कंडीशन मतलब जो मोस्टली जो पॉजिटिव कंडीशंस होते हैं। डन। यस सर। कौन बोल रहा है? सर प्रथमेश। प्रथमेश। हाउ वाज मैथ्स 4? फुल मिलेगा? रिजल्ट आने ना सर? नहीं सर, नहीं मिला अभी तक। सर हमारा आ गया सर। कितना मिला पॉइंटर? 9.79 9.9 सही है। इस 8.59 तो हर किसी को मिलता है ना आजकल।
We take up a typical problem on LPP. Hold on. We have been given maximize z is equal to 3x1 plus 2x2. We have been given subject to the condition 3x1 plus 2x2 less than equal to 18. We have been given further 0 less than equal to x1 less than equal to 4, and we have been given 0 less than equal to x2 less than equal to 6. और अपने को बोले x1 comma x2 is greater than equal to 0. आपको समझ गया रहेगा the question is on maximize. This is nothing but the objective function. आपको समझ गया रहेगा this is the condition which is constraints. This is a variable x1 and this should be x2. आपको याद होगा 12th में अपने किया रहेगा. I'm just revising whatever you must have done so that you understand every terminology proper. सबसे पहला चीज अपने को ये प्लॉट करने को आना चाहिए कि नहीं. We take one variable as x1 लगता नहीं on x-axis and this is supposed to x2. बराबर आराम से. We have 3x1 plus 2x2 equal to 18. What is the best way to plot? Put x2 as 0, 3x1 equal to 18. What is x1 equal to 6? x1 is nothing but equal to 6. Suppose x1 is nothing but 6 here. अगला. Put x1 as equal to 0, 2x2 equal to 18. मतलब x2 is nothing but 9. x2 may be supposed to 9 somewhere here, right? एक बार और. We have 3x1 plus 2x2 is less than equal to 18. अगर x2 is 0, 3x1 equal to 18 मतलब x1 is 6. अगर x1 is 0, 2x2 equal to 18 मतलब x2 is nothing but 9. तो लगता नहीं my line is nothing but this way. This is nothing but the line here. लगता नहीं this is the first line. We have 3x1 plus this should be 2x2 is equal to 18. ये अपना line ready होगा, right? अभी less than है, greater than है, क्या है वो बाद में देखेंगे. First line is ready. What about second line? We have x1 is nothing but 4. Where is 4? लगता नहीं ये 6 है तो 4 इसके पहले रहेगा, right? लगता नहीं this is nothing but x1 equal to 4. This should be x1 is equal to 4, right? This is nothing but 4 here. The moment we have plotted, can we get the intersection? लगता नहीं x1 तो पक्का 4 है. अगर x1 4 है, what should be x2? चेक कर लो. x1 is nothing but 4. 4 into 3 is 12. 18 minus 12 कितना रहेगा? 6. 2x2 is nothing but 6. So x2 should be nothing but 3. एक बार और ध्यान दें. We have plotted the first line 3x1 plus 2x2 is equal to 18. When x2 is 0, 3x1 equal to 18. What should be x1 equal to 6? When x1 is 0, 2x2 equal to 18. What should be x2 equal to 9? लगता है मेरा पहला लाइन तो प्लॉट हो गया. अगला लाइन x1 is 4. लगता है x1 is 4 is drawn here. लगता है अगर x1 is 4 इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे रहेगा. We get the intersection very quickly. x1 is nothing but 4 intersecting with this. 4 into 3 is 12. 18 minus 12 is nothing but 6. 2x2 is equal to 6. What should be x2 equal to 3? मतलब intersection is 4, 3. What about next? अगला है x2 is nothing but less than equal to 6. लगता है x2 is nothing but 6. Where is 6? ये 9 है मतलब 6 इसके नीचे, राइट? अब ध्यान देना. डोंट डिफाइन हियर x2 is 6. लगता नहीं ये 9 है मतलब 6 इसके नीचे. और मत भूलना ये 4, 3 था, राइट? मतलब दिस इज नथिंग बट 3. अगर ये 3 ये 9 मतलब 6 शुड बी समवेयर इन बिटवीन, बराबर? तो 3 और 9 के बीच में 6 इज नथिंग बट लगता है दिस सपोज दैट वी टेक इट एज 6. लगता है दिस इज x2 इज नथिंग बट इक्वल टू 6. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? एक बार और थर्ड लाइन एकदम ध्यान से. लगता है वी अंडरस्टैंड x2 इज नथिंग बट 6. कहां पे रहेगा 6? ये 4, 3 मतलब x is 4, y is 3. ये 9. 6 मतलब डेफिनेटली 3 और 9 के बीच में. लगता है समवेयर इन बिटवीन. वी प्लॉट दिस एज x2 इज नथिंग बट इक्वल टू 6. नाउ वी हैव टू थिंक कि अपना रीजन कौन सा. रिमेंबर वी हैव टू टेक दैट रीजन जो सब कुछ सेटिस्फाई करे, बराबर? मतलब दिस इज द फर्स्ट लाइन. इसका लेस देन. टेल मी लेस देन मतलब लेफ्ट की राइट? लेस देन मतलब लेफ्ट की राइट. सोचो यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 एंड सो, राइट? तो लगता नहीं 4 के बाद 5 राइट में इट इज इंक्रीजिंग, बराबर? 4 के पहले 3 मतलब लेफ्ट में इट इज डिक्रीजिंग. तो लेस देन मतलब कम, कम मतलब इट शुड बी लेफ्ट. तो कभी भी समझ जाओ कि लेस देन मतलब इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड. सिमिलरली यहां पे समझो 1, यहां पे समझो 2, यहां पे समझो 3.
अगर लेस देन मतलब नीचे के ऊपर, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अगर ऊपर जाएगा मतलब इंक्रीजिंग, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, अगर नीचे जाएगा मतलब इट शुड बी डिक्रीजिंग। तो रिमेंबर लेस देन मतलब इट शुड बी लेफ्ट साइड एंड ऑन द लोअर साइड। लेफ्ट एंड लो इज नथिंग बट लेस देन। आराम लगता नहीं लेस देन इक्वल टू 18 मतलब इसका लेस देन मतलब इसका लेफ्ट साइड मतलब लगता है इस तरफ, बराबर। इसका भी लेस देन इक्वल टू 4 मतलब लगता है इसका भी लेफ्ट साइड, लगता है दिस इज नथिंग बट x1 इक्वल टू 4, बराबर। आपको याद होगा ये पूरा कंसेप्ट 12 में किया है। और लगता है ना x2 इज इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन, ये x2 इक्वल टू 6 है, इसका लेस मतलब नीचे के ऊपर, लेस मतलब नीचे, लेस मतलब लेफ्ट। तो डोंट इवन ये वाला लाइन का लेस देन मतलब नीचे भी और लेफ्ट भी मतलब इधर। इसका भी लेस देन मतलब इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, इसका लेस देन मतलब नीचे। विच इज द रीजन जो सब कुछ को सेटिस्फाई करे। लगता नहीं ये पूरे का लेस देन मतलब नीचे और लेफ्ट, इसका भी लेस देन, इसका भी लेस देन मतलब डोंट फील द रीजन वी आर एक्चुअली इनटू इज इट नॉट दिस रीजन। सोच लो परफेक्ट। अपने को बोला है इसका लेस देन मतलब लेफ्ट, इसका भी लेस देन मतलब लेफ्ट और इसका भी लेस देन मतलब नीचे। वो रीजन जो हर चीज को सेटिस्फाई करे। अगर अपन ये रीजन लेते, इसका लेस होता, इसका भी लेस होता, लेकिन इसका बढ़ जाता है, नॉट पॉसिबल। अगर अपन ये रीजन लेते लगता है वापस इसका राइट मतलब ग्रेटर, नॉट पॉसिबल। अगर अपन ऊपर लेते लगता है इसको ऊपर मतलब ग्रेटर, इवन दैट इज नॉट पॉसिबल। लगता है अपने को तीनों का लेस देन चाहिए, राइट, मतलब इसके नीचे, इसके लेफ्ट और इसके भी नीचे। द रीजन विच इज सेटिस्फाई ऑल ऑफ देम इज नथिंग बट दिस रीजन। याद है 12th में किसी जमाने में ये काफी किया रहेगा, अगर चैप्टर किया रहेगा तो। सर वो टुवर्ड्स द ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ यस। लेकिन लोचक है ना, मैंने द रीजन आई हैव नॉट यूज्ड दैट वर्ड इज सपोज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन व्हाट विल यू डू? हाँ सर वो करेक्ट है ना, तो 12th में नहीं आता लेकिन अपने को आएगा, इसलिए मैं वो वर्ड यूज नहीं किया। ओके हाँ सर वो मतलब वी वो कैन हैव अ केस जहां पे द याद लाइन था। इज थ्रू ओरिजिन, देन व्हाट विल यू डू? यस सर करेक्ट। ओके, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट लेस देन मतलब लेफ्ट, लेस देन मतलब लो, दैट्स इट। यस सर। बराबर। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड this is the region, बराबर। remember LPP says कि the answer can be at any of the corners. corner मतलब it can be at this corner O, this can be at this corner A, this can be at this corner B, this can be at this corner C, this can be at this corner D also. अपना जो भी रीजन रहेगा the answer can be at any of the corners. कितना कॉर्नर अपने पास? O है, A है, B है, C और D है, राइट। कहते हैं B का we know coordinate has 4, 3. What is C का coordinate? Anybody? C में x2 is nothing but 6, right? अगर x2 is 6, 6 into 2 12, 18 minus 12 is nothing but 6 again. 3x1 equal to 6. What is x1 equal to 2? एक बार और. C x2 is nothing but 6. 6 into 2 12, 18 minus 12 is 6. 3x1 equal to 6. What should be x1 equal to 2? मतलब C is nothing but at 2, 6. Now according to LPB, the answer is at any of the corner. मतलब कितना आंसर पॉसिबल है? O is an answer, A is an answer, B is an answer, C and लगता है D भी। देखते हैं, लगता नहीं the answer can be at O, answer can be at A, answer can be at B, answer can be at C, answer can be at D also, बराबर। We'll check up O पे how much is x1, how much is x2, and लगता नहीं we'll get Z as well. What is Z? Z was nothing but 3x1 plus 2x2. लगता नहीं O is origin, coordinate था 0, 0. लगता है A was at this point जहां पे it is 4, लगता है it should be definitely 4, 0. x1 is 4, x2 is nothing but 0. लगता है B का कोऑर्डिनेट we have checked up as 4, 3. लगता है C is the point 2, 6, मतलब x2 is nothing but 2, x1 is nothing but 2, x2 is 6. And D was this point जहां पे लगता है it is on y axis, मतलब this should be 0, 6. लगता है D का कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट इज 6, मतलब दिस शुड बी 0, 6, बराबर। लगता है D should be nothing but at 0, 6. Now according to LPP, whatever was the feasible region we have got, feasible region क्या होता है? जहां पे आंसर अपना पॉसिबल है। The answer can be at any of the corners possible, O, A, B, C and D, बराबर।
अब अपने को हर एक का कोऑर्डिनेट मिल गया, विल गेट z 1 by 1. z is 3x1 plus 2x2, दोनों जीरो पक्का, बस z is 0. a में x1 is 4, x2 is 0, लगता है 4 into 3 कितना है 12. यहाँ पे x1 is 4, x2 is 3, आंसर बोलो. 4 into 3 12, 3 into 2 6, 12 plus 6 is 18. अगला x1 is 2, 2 into 3 6, x2 is 6, 6 into 12, 12 plus 6 is nothing but this should be 18 again. लगता नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन is 0,6, x1 is nothing but 0, this is gone, x2 is nothing but 2, 6 into 2 is nothing but this should be 12. चेक कर लो वापस. 0 0, x1 is 0, x2 is 0, आंसर is 0. यहाँ पे x1 is 4, x2 is 0, x1 is 4, 4 into 3 12 plus 0 is 0, x1 is 4 again, 4 into 3 12 plus 3 into 2 6, that is 18. यहाँ पे x1 is nothing but 2 into 3 6 plus 6 into 12, 12 plus 6 is nothing but 18. यहाँ पे x1 is 0 gone, 2 into x2, 2 into 6 is nothing but 12. लगता नहीं, how many solutions we have got? We have got totally 5 solutions, 0 12 18 18 12. लगता नहीं सबका सब आंसर. Now I want optimum, मतलब the best answer. Tell me out of this which is the best answer. Question maximize था कि minimize? Maximize, right? मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा आंसर दे रहेगा वो, मतलब कौन सा? लगता नहीं, the best answer is nothing but 18. मतलब it can be this also, it can be this also. मतलब we understand that the optimum solution can be at B 4,3 or it can be at C also, which is nothing but 2,6. अगर पूछो तो minimum तो O. अगर मिनिमम पूछा लगता है आंसर शुड बी नॉट ओ, लगता नहीं आंसर इज नथिंग बट 0 0, सबसे कम आंसर 0 है, मतलब आंसर शुड बी एट ओरिजिन 0,0. रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन एंड आउट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. इज द वे वी सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलपीपी, इज दैट अंडरस्टूड? ये वो है जो हमने 12th में किया था. ओके, रिमेंबर 12th में क्या था, अपने पास खाली दो ही वेरिएबल थे, x1 x2. Now, whenever we do it semester 5, we may have x1, x2, x3, x4 also, right? अभी जब तक दो वेरिएबल अपन तो ग्राफ में बना डाले. अगर तीन वेरिएबल रहेगा, हाउ डू मेक अ ग्राफ इन 3D, बराबर? अगर चार वेरिएबल रहेगा, हाउ विल हैव अ 4-dimensional graph? So that is not possible. So we will have different methods possible. The method is called a simplex method. Remember, simplex method is the core of this chapter, जहाँ पे we can solve problem with more than 2 variable also. रिमेंबर, जब तक 2 वेरिएबल है ग्राफ इज फाइन. जब वेरिएबल 2 से ज्यादा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वी कैन नॉट ड्रॉ अ ग्राफ. अंडर दैट केस वी हैव टू नो सम बेटर मेथड एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी लर्न इन सेमेस्टर 5. कभी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो. बोलो ना सर. बोलो. सर 2 वेरिएबल मतलब 2D, 3 मतलब 3D, ऐसा होता है? 2 वेरिएबल तो एक साथ हो गया. हाँ, अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो क्या रहेगा? x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, बराबर ना? यस सर. तो 4 वेरिएबल रहेगा तो हाउ विल यू प्लॉट नाउ? इसके लिए वी हैव अदर मेथड जहां पे बिना ग्राफ के भी आंसर मिला. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी लर्न इन सेमेस्टर 5. सर बोलो ना सर. बी एंड सी दोनों ऑप्टिमम सॉल्यूशन है सर इस क्वेश्चन में, बट सर अगर बी एंड सी में से भी हम लोग को पूछा जाएगा कि कौन सा बेटर है, जज कर सकते हैं क्या सर हम लोग? नहीं, एक्चुअली अगर आपको सर वो फिर और कंस्ट्रेंट्स देना पड़ेगा ना? ऐसा नहीं, एक मिनट. अगर आपको 12 के याद रहेगा, ये अपन आगे करेंगे, तो द कंडीशन इज अगर बी और सी दोनों का आंसर सेम है तो एवरी पॉइंट बिटवीन बी एंड सी इज आंसर. मतलब इसमें तो कोई पॉइंट लो, हर एक सोल्यूशन ऑप्टिमम. और उसका रीजन ये होता है कि अब तुमने पूछे, इसलिए बता रहा हूं, जिसको याद नहीं रहेगा ना, व्हेनेवर वी कम टू दैट एक्चुअल डिफिकल्टी विल लर्न दैट टाइम अगेन. अगर आप ध्यान दो, दिस फॉर द कंस्ट्रेंट इज नॉट 3x1 plus 2x2 equal to 18, बराबर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? स्लोप ax plus by plus c minus a by b ना, -3/2, बराबर? और अगर आप ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी स्लोप सेम है. 3x1 plus 2x2, स्लोप इज -3/2.
जब भी ये कंडीशन रहेगा कि कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्ट के पहुंचने का स्लोप ही सेम, आपको समझ जाना चाहिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज मोर देन वन। मतलब ये भी ऑप्टिमम, ए भी ऑप्टिमम, इसके बीच में हर एक पॉइंट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये तूने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। whenever we come across this difficulty, actually that time we study it further. ओके सर। याद है क्या 12 सीईटी में क्वेश्चन आता था, the answer is at B, answer is at C, और answer is at every point between B and C. हाँ सर। It is every point between B and C. ओके सर। Remember, as a mechanical engineer, out of every maths that we have studied, this is one of the most important one. आपके एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा चलेगा, आपने को ये आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत गाली देगा आपने को। Done for all. सर बोलो ना। सर वो आंसर हमेशा एंड पॉइंट्स पे क्यों होता है, उसका क्या रीजन है? अपने को मैक्सिमम चाहिए ना। अभी सोचो, अगर तुम्हारा कर्व ऐसा है बराबर, तो मैक्सिमम मतलब सबसे दूर रहेगा कि अंदर रहेगा? अगर मैक्सिमम रहेगा तो एकदम दूर रहेगा ना, वो जितना दूर उतना मैक्सिमम ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो सकता ना, उससे आगे भी है, इधर भी है, इसके भी आगे है, तो लगता है ना जो एक्सट्रीम एंड रहेगा उधर ही मैक्सिमम हो सकता है ना वो। ओके बराबर, इसके लिए भी चेक करते हैं एंड पॉइंट्स ओनली। अगर बीच में कहीं पे रहेगा तो उससे ज्यादा पॉसिबल है ना बाहर। तो जो एक्सट्रीम एंड रहेगा वही आंसर हो सकता है ना। एक्सट्रीम एंड इज दिस, एक्सट्रीम इज दिस, एक्सट्रीम इज दिस, एक्सट्रीम इज दिस एंड सो ऑन। यस बराबर। अब सोचो ना, पूरा एरिया का मीन कहां पे रहेगा? इधर, बराबर। तो यहाँ पे एक्सट्रीम है, यहाँ पे एक्सट्रीम है, यहाँ पे एक्सट्रीम है, यहाँ पे एक्सट्रीम है। अब लोगों को दिख गया रहेगा जो मैक्सिमम एक्सट्रीम है उधर, मिनिमम एक्सट्रीम है वो इधर, 0 0। यस डिप्लोमा? यस सर। नहीं, अभी जो पूछा तो डिप्लोमा है क्या? नो सर। तो 12 में क्या? हाँ भाई, वो 12th के साथ मैंने ठीक है, मैं आप बोल तुक्का मारा ना, सच्ची बोल। हाँ, क्या क्या व्हाट? सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्या समझाने में, क्या बोले? सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था। ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग कुछ भी रहेगा ना टीचर पे गाली देते हो। डन क्या फुल?
I assume this is done for everyone, yeah. Now, using this example, we learn two words. One is called as feasible, and the second is called as degenerate. I assume the graph is done for everyone, even that table that we have, even that is plotted for everyone. Now we'll understand when we call feasible, when we call degenerate. ध्यान दो, remember ये अपना solution तो है, बराबर? ना solution में अगर सब वेरिएबल का वैल्यूज पॉजिटिव है, only then it is called as a feasible solution. क्या कंडीशन? सॉल्यूशन में अगर सब वेरिएबल का वैल्यूज पॉजिटिव है तो ही इट इज कॉल्ड एज फीजिबल सॉल्यूशन, और अगर किसी भी वेरिएबल का आंसर जीरो है, अंडर दैट केस रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेट. क्या कंडीशन? डीजेनरेट. अगर ध्यान दो यहां पे कौन सा डीजेनरेट है? इज दिस डीजेनरेट? नो. इज दिस डीजेनरेट? नो. यहां पे दिस इज इट डीजेनरेट? यस. ये डीजेनरेट? यस. ये डीजेनरेट? यस. तो रिमेंबर अगर अपने को वेरिएबल का वैल्यू 0 मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेट, और अगर अपने को सब वैल्यू पॉजिटिव मिला तो ही इट इज फीजिबल, अदरवाइज इट इज नॉट. तो रिमेंबर अपने को दो वर्ड याद रखना है, क्या? वन इज फीजिबल, अदर इज डीजेनरेट. व्हाट इज फीजिबल? फीजिबल इज जहां पे एवरी वैल्यू शुड बी कमिंग आउट एज पॉजिटिव ओनली. Remember, the next is nothing but degenerate. Degenerate is only when any of the variable takes the value equal to 0. Right? Note. A solution is said to be a feasible solution. A solution is said to be a feasible solution if non-negativity condition is satisfied. If non-negativity condition is satisfied. A solution is said to be feasible solution if non-negativity condition is satisfied. Right, next, degenerate. I repeat again, a solution is said to be feasible solution if non-negativity condition is satisfied. Right, next, degenerate. If one or more variable has zero value, if one or more variable, यहाँ पे it is one variable, यहाँ पे it is two variable, right? If one or more variable has zero value, then the solution is called degenerate. Then the solution is called degenerate. We have learned two words using the example. One is feasible. Feasible के लिए condition क्या? हर एक का value जो रहेगा कोई भी negative नहीं आना चाहिए. What is degenerate? Degenerate is only when I get any one of the variable का value as nothing, but still it can be one variable or two variable as well.
look here. We have been given maximize z equal to 3x1 plus 9x2, x1 plus 4x2 less than or equal to 8, x1 plus 2x2 less than or equal to 4, x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0. Right? Further, check whether there is any degenerate solution. Check whether there is any degenerate solution. I repeat the question once again. Maximize z is equal to 3x1 plus 9x2, subject to x1 plus 4x2 less than or equal to 8, x1 plus 2x2 less than or equals to 4, and we have been given x1 greater than or equal to 0, x2 also greater than or equal to 0. Question says check whether there is any degenerate solution. I hope everybody must have copied the problem. We start working ahead. Is it? चलो हाँ, अगर आपको याद होगा, this is maximize मतलब this is objective function. This is nothing but the constant, and this is nothing but the non-negativity condition. x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0. We start working एकदम ध्यान से. Don't you feel? We have this is x1 and this is x2. ये लास्ट प्रॉब्लम में जिसमें ग्राफ लगेगा, आज इसके बाद ग्राफ लगेगा नहीं कभी भी. x1 and this is x2. आराम से we'll plot the lines first. x1 plus 4x2 equal to 8. How do I plot? When x2 is 0, how much is x1 equal to 8? लगता है x1 is 8, suppose say here. बराबर? When x1 is 0, 4x2 equal to 8. मतलब x2 is equal to 8 upon 4, which is 2. 2 मतलब it should be somewhere very below, right? लगता है अगर ये 8 है, लगता है 2 is here. This is the first line that we have. Is it not the first line? x1, this should be 4x2 is nothing but equal to 8. Am I understandable? अगला line x1 plus 2x2 less than equal to 4. How do I plot this? Check करो वापस. When x2 is 0, what is x1 equal to 4? x1 4, ये 8 है, मतलब 4 इससे काफी पहले लगता है. This should be supposed to say 4 here. When x1 is 0, 2x2 is equal to 4. What should be x2 equal to 4 upon 2? Nothing but 2. मतलब ये 2 वापस, right? So don't you feel we are into nothing but this region. When x2 is 0, x1 is nothing but 4. When x1 is 0, 2x2 equal to 4, x2 is nothing but 2. लगता है we have nothing but this as the line under consideration. Is it not? x1 plus this should be 2x2 is nothing but equal to 4. Tell me which region we are at. इसका भी लेस देन, इसका भी लेस देन. सोच के बोलो कौन सा रीजन में अपन है. I said this is region 1, this is region 2. Region 2. Region 2. रीजन 1 है कि रीजन 2 है कि रीजन 1 और 2 दोनों है. Only region 2. Only region 2. Don't you feel we have x1 plus 4x2 less than equal. Less than मतलब क्या रहेगा? लेफ्ट और नीचे, राइट? लगता है ना इसका लेस देन मतलब लेफ्ट, मतलब ये पूरा रीजन, और इसका भी लेस देन है, मतलब लगता है ना इसका भी नीचे का रीजन पूरा. अगर अपने यहां पे लिया, लगता है ना इसका तो लेफ्ट लो हुआ, लेकिन लगता है ना इस पे ज्यादा. इज इट पॉसिबल? नो. लगता है ये वो रीजन है जो इसका भी लोअर है, इसका भी लोअर, मतलब इसका भी लेस देन, इसका भी लेस देन. वी हैव टू टेक दैट रीजन जो दोनों को सेटिस्फाई कर. लगता नहीं इसका लेस देन इज नथिंग बट ये फुल, इसका लेस देन इज दिस. दिस इज द रीजन व्हिच इज सैटिस्फाइंग बोथ. अगर आपने ये रीजन लिया, लगता नहीं इसका लेस रहेगा लेकिन इसका ग्रेटर, व्हिच इज नॉट जस्टिफाइड. दिस इज द रीजन that this is discarded and the region is nothing but only this. लगता नहीं कितना कॉर्नर्स है? Suppose O, this is supposed to A and this is supposed to B. कहते हैं A is nothing but this should be at 4,0. B यहाँ पे 2 था, मतलब this should be 0,2. लगता है ना खाली 3 ही कॉर्नर है. This can be O, this can be A and this can be nothing but B. We have x1 and we have this should be x2 here. लगता है ओरिजिन में this should be 0, 0. A में this was nothing but 4, 0.
और बी में दिस इज नथिंग बट 0 कॉमा दिस इज 2. लगता है अपने को z चाहिए. हाउ मच वाज z was 3x1 plus 9x2. एकदम आराम से. हाउ मच इज 3x1 plus 9x2? ओ में तो लगता नहीं x1 x2 दोनों 0 ना, आंसर इज 0. व्हाट अबाउट ए? x1 is 4 into 3 is 12, x2 is 0 छोड़ दो. b में x1 is 0, 9 into 2 should be nothing but 18. टेल मी, अपने पास तीन ऑप्शन है 0, 12, 18, राइट? इसमें जब विच इज ऑप्टिमम? 18. अरे जल्दी, विच वन इज ऑप्टिमम? B 18 हो रहा है सर. लगता है ना अपने को मैक्सिमाइज बोले, लगता नहीं मैक्सिमम आंसर इज एट 18. लगता नहीं वी कैन ऑलवेज से दैट z max is nothing but this should be 18 here. लगता नहीं x1 is nothing but this should be 0, x2 is nothing but this should be 2. Tell me, is the answer feasible? Tell me, is the answer feasible? Feasible कंडीशन क्या था? अगर feasible है तो रिमेंबर अपने पास हर एक आंसर पॉजिटिव आना चाहिए. लगता नहीं एक भी नेगेटिव आया क्या? नहीं, मतलब feasible है. Is it degenerate? Is it degenerate? Yes. कंडीशन पर डिजेनरेट. अगर एक भी अपने को वेरिएबल का आंसर 0 मिलता मतलब इट शुड बी डिजेनरेट. लगता है ना अपनों को x1 0 मिला मतलब इट शुड बी डिजेनरेट. लगता है दिस इज नथिंग बट अ फीजिबल सॉल्यूशन बिकॉज़ कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं है. अपने को एक आंसर 0 मिला मतलब इट शुड बी डिजेनरेट एज वेल. लगता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज दैट z max इक्वल टू 18 एंड एट x1 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2. Is the meaning of the word degenerate and feasible understandable to everyone, or cup degenerate, cup feasible? Is that logic clear? Come on, guys, pick up. Yes sir. Copy. Yes, sir. Yes. remember graphical एग्जाम अपने को सेम 5 में एग्जाम में शायद आने का चांसेस एकदम कम है. I've taken 2 examples only for you to understand the terminology very, very clear. Which term we use how and why. Done for all?
Tell your friends also to join the batch. सर हाँ बोलो ना. सर ये मैथ्स में ब्राउनियन मोशन क्या है सर? Brownian motion is जहां पे the motion is in any random direction. क्यों? अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली कोर्स देख रहा था ब्राउनियन मोशन पे, मतलब जो फाइनेंस में जो होता है ना सर, हाँ रिस्क मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट. हाँ, जहां पे the direction is not defined, it can go in any direction. तुमने ब्राउनियन पढ़ा है पहले, बोलो किधर? ब्राउनियन किधर क्या है सर हम लोग ने? केमिस्ट्री. किए पक्का किए. अच्छा वो वाला. केमिस्ट्री में किए, इसमें भी किए, बायोलॉजी. वो नहीं का फ्लावर में पोलन ग्रेन होता है, याद आ रहा क्या? फ्लावर्स का जो पोलन ग्रेन है उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, वो एट रैंडम किधर भी जाता है. नहीं सर मेरा बायो नहीं था सर. अरे तो इसमें रहेगा ना 9वीं 10वीं में. अच्छा वो वाला, हाँ हाँ वो किया है. हाँ तभी किए. ठीक है ना. ब्राउनियन इज समथिंग यहाँ पे इट इज द डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड. ओके. तो फाइनेंस में लगता है ना. हम्म. आज शेयर मार्केट गिरा, देखा कि नहीं? अच्छा गिरा है क्या? हाँ, मजबूत गिरा है, कंसेक्यूटिव 2 दिन गिरा है. वो तो बोल रहा था ना बबल होने वाला है. हाँ लेकिन वो उतना भी नहीं गिरा है, ठीक है, लेकिन काफी गिरा है. फिर भी क्रैश नहीं है, लेकिन गिरा है. $16K रह गया, क्या बोल रहे हो? अच्छा निफ्टी का बात कर रहे हैं. अच्छा निफ्टी. हाँ सर आपसे एक बात पूछ रहा था सर, बोलो ना. कि सर मुझे अभी फाइनेंस में डोमेन चेंज करना है सर, हाँ एंड कंसिडरेबली मेरा मैथ्स काफी पुअर है. हाँ. तो सर थोड़ा मुझे गाइड कीजिए ना सर, कैसे क्या करना है सर. यू थिंक राकेश झुंझुनवाला का मैथ्स इज वेरी गुड? हाँ सर. डू यू थिंक राकेश झुंझुनवाला का मैथ्स इज वेरी गुड? तो गुज्जू है ना सर. हाँ तो गुज्जू सर लाइक. हिसाब आना और मैथ्स आना में फर्क होता है. अच्छा ओके. डूइंग कैलकुलेशन इज नॉट मैथ्स. So whether you know maths or not, that doesn't play a big role. ओके ओके. And practically speaking, you know, whenever you do calculation with respect to money, you tend to calculate fast. ओके. अगर मैंने तुमको पूछा 3/4 बराबर प्लस 3/2, तुमको टाइम ज्यादा लगेगा. मैंने अगर तुमको पूछा 12 9 ₹1.5 कितना होगा, तुम बोलेगा ₹2.25. 3/1.5 होगा ना, ये 12 हो गया ना. ₹1.5 और 12 कितना, तुम बोलेगा ना ₹2.25 फटाक से. बराबर ना. ये 3/4 प्लस 3/2 तुम एलसीएम निकालने बैठेगा ना. हाँ बराबर. बट यू डोंट रियलाइज कि 3/4 मतलब अपन उसको 12 बोलते हैं ना. हाँ. 3/2 अपन ₹1.5 बोलते हैं ना. तो ₹1.5 और 12 कि हो गया ना ₹2.25. ओके. Whenever you convert things in terms of money, you tend to calculate lot faster. तुमको देखो ना, you understand ना, whenever you go to a market, तुमको दिखेगा भाजी वाला 2 मिनट में हिसाब करता है. हाँ. Do you mean to say that he knows math better than you? Impossible. But his calculation is faster. तो सर फिर ये एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में क्यों इतना ब्राउनियन मोशन, कैलकुलस वगैरह एक्सटेंसिवली यूज होता है वहां पे सर? हाँ हो गया ना, क्यों नहीं होगा? होएगा ही ना, 100% होएगा. That is when you want to do
क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस यूजिंग ये टेक्निकल, नॉट फंडामेंटल। जिन लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं ना लॉन्ग टर्म, हाँ दे मेक ऑन फंडामेंटल, और जिन लोग शॉर्ट टर्म बनाते हैं ट्रेडिंग, दैट इज ऑन टेक्निकल। डू यू थिंक वॉरेन बफेट वुड बी डूइंग टेक्निकल एनालिसिस? तो ग्राफ आएगा करने को, बट इज फंडामेंटल इज स्ट्रॉन्ग। तो रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट इज ऑन फंडामेंटल एंड ट्रेडिंग इज ऑन टेक्निकल। टेक्निकल इज मैथ्स। अच्छा सर आप ईशान सर को जानते हो क्या? नहीं। in that technical चलो। doesn't require calculation all. Yeah. But technical gives you money every day ना। हाँ सर टेक्निकल आपने रोज पैसा देता ना, ट्रेडिंग इंट्राडे, हाँ you buy at 9, sell before 3:30 and take the money home. Most of the people do that only. चलो give it in. Basic feasible solution. One question based on this is there in the question paper guaranteed. Give it in basic feasible solution. Let's know the entire working using an example. एकदम ध्यान से सुना. One question on this is sure. We understand the method of working using the first example. I want everybody to be alert. Right. First one. Find all the basic feasible solution for. Find all the basic feasible solution for 2x1 plus x2 minus x3 is equal to 3. 2. And 2x1 3x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 3. We have the first equation is 2x1 plus x2 minus x3 is equal to 2. We have 2x1, we have 3x1 plus we have 2x2 plus x3 is equal to 3. We'll look here, start working. No. We have been told to find the basic feasible solution for this. मतलब क्या है? अपने के इक्वेशन दिया है, ठीक है, अपने को इसका सॉल्यूशन चाहिए. अब अंडरस्टैंड एवरी वर्ड दैट आई स्पीक एकदम प्रॉपर. टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी वेरिएबल्स यू कैन सी? कितना वेरिएबल है? x1 x2 x3, मतलब कितना वेरिएबल है? 3. इक्वेशन कितना है? 2. अपने को बचपन से मालूम है कि फॉर गेटिंग आंसर व्हाट इज द कंडीशन? जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन आंसर पर. ढूंढने के लिए अगर 3 वेरिएबल है फॉर अ फाइनाइट आंसर, अपने को इक्वेशन में कितना मिलना चाहिए? 3 ही. अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व, नॉर्मल मेथड, आंसर को मिल गया. और अगर अपने पास 2 ही इक्वेशन, तो वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 ही. बराबर. नाउ इन सच अ केस व्हाट यू शुड डू, एकदम ध्यान से. नाउ वी अंडरस्टैंड कि अपने पास इक्वेशन 2 ही है लेकिन वेरिएबल कितना है? 3. तो वी कैन नॉट सॉल्व, राइट? तो इसमें से एक एक वेरिएबल को अपने को निकाल लेना चाहिए. तो एट वन टाइम वी कैन टेक x1 as 0, second में we can take x2 as 0, third में we can take x3 as 0. This is called as non-basic variable. Non-basic variable वो वेरिएबल है जिसको हमने 0 लिखा. 0 क्यों लेना पड़ा अपने को? क्योंकि अपने पास इक्वेशन 2 ही है लेकिन अपने पास वेरिएबल कितना है? 3. 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल वी कैन नॉट सॉल्व. तो अपने को कोई ना कोई एक वेरिएबल को कट करना ही पड़ेगा. तो पहले केस में आई कैन टेक x1 as 0, सेकेंड केस में आई कैन टेक x2 as 0, और थर्ड केस में आई कैन टेक x3 as 0. क्यों? अपने पास 3 वेरिएबल, इक्वेशन 2 ही था तो मुझे 2 ही वेरिएबल रखने का. तो कोई भी एक को भी कैन टेक 0. तो कभी x1 को 0, कभी x2 को 0, कभी x3 को 0. अब जो बच जाएगा उसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल. अब देखते हैं. अब x1 को अगर हमने 0 लिया, पहले केस में क्या क्या बचेगा? I will have this should be x2 minus x3 is equal to 2. x1 is 0. यहाँ पे क्या बचेगा? लगता है we have 2x2 plus we have x3 is equal to this should be 3. बराबर.
अगले केस में क्या, x2 0 है, तो दिस विल बी, एक मिनट, पहले केस में दिस इज x2 प्लस x माइनस x3 इज नथिंग बट 2. नेक्स्ट केस में दिस इज 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू दिस शुड बी 3. नेक्स्ट x2 0, तो पहला इक्वेशन इज 2x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2. x2 0, अगला इक्वेशन इज 3x1 प्लस x3 इज नथिंग बट दिस शुड बी 3. थर्ड केस में x3 0, मतलब हमने इसको 0 लिया, क्या बचेगा, पहला इक्वेशन इज 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2. x3 0, we have this is nothing but 3x1 plus nothing but 2x2 is nothing but this should be equal to 3. x3 is 0, तो लगता है 2x1 plus x2 is equal to 2, equation is first. x3 0, 3x1 plus 2x2 is nothing but 3, बराबर. अब मुझे बताओ सॉल्व करके आंसर क्या, क्विक. व्हाट इज x2 का आंसर, x3 का आंसर, एनीवन? कैलसी साइमल्टेनियस, क्विक. x2 5/3. x2 how much? 5/3. 5/3. x3 And x3 is -1/3. minus 1/3. Okay. For the next one, anyone? x1, x3. So x1 is 1 x1 is 1. Okay. and x3 is 0. Okay. Next one. So 1 and 0. x1 is 2 दोनों. Sir, no, x1 is 1 and yes, yes. Is it? Okay. Tell me, is this feasible? No. Quick. No, sir. What was condition for feasible? कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बराबर. ये माइनस है, मतलब इज इट feasible? No. Is this feasible? Yes. Is this feasible? Yes. Tell me, is this feasible? Yes. What's the answer? दोनों का same है, right? Tell me, is it degenerate? What was condition for degenerate? One or more than one variable का value should be coming out as 0. लगता है यहाँ पे एक का भी 0 है क्या? नहीं. Is it degenerate? No. Is this degenerate? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. लगता है दोनों का आंसर सेम था. लगता है even this is degenerate. Yes. लगता है even this is nothing but degenerate. लगता है वो कंडीशन था जहां पे there was no solution expected. अपने खाली चेक करना चाहिए था whether the solution is possible, which is feasible, which is degenerate. That's it. आपने को मैक्सिमम यूनिट्स कुछ भी नहीं बोला है. बट द डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पे अपने को दिया है 2 वेरिएबल, लेकिन 3 वेरिएबल. इक्वेशन कितना दिया है? 2. तो विच अंडरस्टैंड का 2 ही इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल चाहिए, तो वी ऑलवेज टेक वन वेरिएबल एज 0 एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली. इज द वे टू डू अंडरस्टूड टू एवरीवन, इज इट? एनी पार्ट वांट मी टू वंस अगेन एक्सप्लेन? प्लीज टेल. सर स्टार्ट एक बार वापस बताइए ना, स्टार्ट क्या किया था आपने? स्टार्ट में मेरा मिस हुआ अपने था को थोड़ा. ये दिया, बराबर. हाँ सर. और अपने को बोला फाइंड द बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन. तो अभी अपने को समझ जाना चाहिए कि अपने पास 3 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन कितना है? 2 ही. करेक्ट सर. तो कैन यू सॉल्व? नो. रूल क्या है? जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल. करेक्ट सर. तो यहाँ पे अगर 2 ही इक्वेशन है तो वेरिएबल 2 ही होना चाहिए. बराबर. तो व्हाट आई डू, इस 3 में से अपन एक वेरिएबल को निकाला. कभी अपन ने x1 को निकाला, कभी अपन ने x2 को निकाला, कभी अपन ने x3 को निकाला. अगर x1 को निकाला, अभी कितना वेरिएबल बच गया? 2. कैन वी सॉल्व? यस. ओके. अभी x2 को निकाला, अभी कितना वेरिएबल बच गया? 2. कैन वी सॉल्व? यस. अभी x3 को निकाला, कितना बच गया? 2. कैन वी सॉल्व? यस. तो वी सॉल्व ऑल ऑफ देम. इसके बाद हमको दिख गया कि यहाँ पे नेगेटिव इसका मतलब फीजिबल नहीं है, यहाँ पे 0 मतलब वो डिजेनरेट है. ओके सर.
Yes, I बरोबर? got it. Copy. Yeah. Done. Yes, sir. Done.
चलो, we take one more example. We have been given x1 plus we have 2x2 plus 4x3 plus x4 equal to 3. We have 2x1 minus x2 plus 3x3 minus 2x4 is equal to 4. Look here. I have to understand that we have how many variables? 4. Equation में भी कितना है? 2 ही, बराबर. The thinking process remains as same. I want you to help me out. अगर 2 इक्वेशन है तो पक्का बात वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 ही, राइट? लगता है ना पिछले बार अपने पास 3 वेरिएबल था, इक्वेशन 2 था, मुझे 2 ही वेरिएबल चाहिए, हमने एक वेरिएबल को कट किया, राइट? यहाँ पे अपने पास वापस 2 इक्वेशन है, वेरिएबल अपने को 2 ही चाहिए, कितना वेरिएबल को वी हैव टू कट? हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव टू इग्नोर? क्विक. 2. लगता है ना इक्वेशन 2 ही है, बराबर, तो वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 ही, लेकिन कितना है अपने पास? 4. कहते हैं 2 वेरिएबल को वी हैव टू कट, राइट? अब देखते हैं. लगता है ना पिछले बार इट वाज इजी, वी हैव टू एलिमिनेट ओनली 1, यहाँ पे वी हैव टू एलिमिनेट 2. तो पहले केस में सपोज I take x10 x20, बराबर, बराबर. अगले केस में I can take x10 and x30. We can also have x10 and this should be nothing but x40. Don't you feel? कहते हैं x1 x2 का एक पेयर, x1 x3 का एक पेयर, x1 x4 का भी एक पेयर, बराबर. x1 के साथ 0 के साथ जितना भी कंडीशन था we have done. We think of x2. इसके बाद लगता है we can have x20, we can have x30. लगता है we can have x20, we can have x40, बराबर. And nextly we can think of x30 and this can be nothing but x40. चेक करो क्या ऐसा कोई भी केस है जो हमसे छूट गया है? लगता है आउट ऑफ द 4 वेरिएबल्स वी कैन कीप ओनली 2 बिकॉज वी हैव 2 इक्वेशंस. तो डेफिनेटली मुझे 2 वेरिएबल निकालने पड़ेगा. तो नॉन बेसिक वेरिएबल था 2 वेरिएबल जिसको मैंने 0 पुट कर दिया. तो वी हैव x1 x2 1 केयर, x1 x3 x1 x4 लगता है 0. अगले में x2 x3 x2 x4 लगता है. लास्ट में वी हैव दिस इज x3 x4. कोई भी ऐसा कंडीशन जो आपको लगता है लेना चाहिए दैट वी हैव नॉट टेकन, प्लीज टेल. एवरी कंडीशन वी हैव. अब चेक करते हैं. अगर x1 x2 0, पहला इक्वेशन इज 4x3 plus x4 is equal to 3. अगला इक्वेशन इज 3x3 minus 2x2 is equal to 4. We have 3x3 minus 2x4 equals to 4. Can anyone take calci and solve and tell me x3 x4 का values quickly? Can anyone tell me x3 x4 का values quickly? So x3 is 10 by 11. x3 is 10 by 11. x4 is Minus 7 by 11. minus 7 by 11. Quickly tell, is it feasible? No, sir. Is it feasible? Negative का मतलब this is not feasible, this is no. Is it degenerate? Yes. डिजेनरेट कब होगा? जब मेरे को कोई ना कोई आंसर 0 मिलेगा तब. यहाँ पे एक भी आंसर 0 नहीं मिला, मतलब इज इट डिजेनरेट? नो. वी चेक फॉर द नेक्स्ट वन. x10 x30. x10 x30 लगता है ये दोनों बच गया. लगता है कि अब दिस इज 2x2 plus x4 is equal to 3. नेक्स्ट वन. x1 और x30, this is minus x2 and this is minus of nothing but 2x4 is equal to 4. Solve and tell me x2 x4 का values quickly. So x2 is 10 by 3. 10 by 3, okay. x4 is Minus 11 by 3. minus 11 by 3. Negative, is it feasible? No. एक भी 0, is it degenerate? No. I'll do one more and last का 3 you will get from me. x10 x40. पहला इक्वेशन is 2x2 plus 4x3 is equal to 3. Next one is x1 and x40, we have minus x2 plus we have 3x3 is equal to 4. Minus x2 plus 3x3 equal to 4. Can anyone tell me x2 and x3 का values quick?
So minus 7 by 10. X2, x2 is minus 7 by 10. x3 11 by 10. okay. Negative है, is it feasible? No. एक भी जीरो, is it degenerate? No. लेकिन पहला 3 का आंसर we have got together. Last का 3 I want you to get for me quick. I repeat again, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है. I want each of you to participate. Tell me the answers, all of you. Fourth, fifth, and sixth. Hello. Yes. So we have Sir, to find out x1 and x4, no? ये We have सर written आपने x2 गलत and लिखा है. x3. आपने जीरो वाले लिखे हैं सर वैल्यूज. भावना को समझो. What is the answer, anybody? So x1 is 5 by 2 5 by 2, okay. and x4 is 1 by 2. दोनों positive, is it feasible? Yes. Is it degenerate? No. Next one. x1 is 7 by 5 Hmm. and x3 is 2 by 5. दोनों positive, feasible? Yes. Degenerate? No. Next one. x1 11 by 5. 11 by 5, okay. x2 is 2 by 5. दोनों positive, feasible? Yes. Degenerate? No. I want everybody to verify whether whatever he told is correct and matching with your answer. Yes sir, correct है. Yes, sir, correct. घर से लेक्चर बैठने का ये फायदा है, सबके पास कैलकुलेटर होता है.
क्लास में मतलब सबसे आधा का बैच बोला था कैलसी नहीं। Come on guys, quick. The third semester online for you all, right? Yes, sir. Yes. And maybe the fourth exam. अगर ऑनलाइन हुआ तो नहीं सर, तो थर्ड college- एग्जाम ही होगा। सर ऑनलाइन ही होने वाला है। सर कॉलेज कभी चालू होगा, कुछ आइडिया आपको सर? नहीं भाई, एक तो ये कोरोना का स्ट्रेन कितना हुई समझ में नहीं आ रहा है। डेल्टा तो इंडिया में मिला नहीं? हाँ डेल्टा तो बहुत मिला इंडिया में। सर डेल्टा, लैम्डा, कापा सब आ गया अभी तो। हाँ, तो वेरिएबल खत्म हो गया, इसका स्ट्रेन खत्म नहीं होगा लग रहा है। इस चैनल का काम धंधा नहीं है यार। Refer your friends to join the batch. Next lecture में we should be in a position to see lot many guys apart from whatever came today. I hope the previous one is done for everyone, is it? Yes, sir. अरे प्रीत नहीं जानते क्या? प्रीत नहीं है। डॉक्टर भी नहीं है। वन मोर गर्ल हु आस्क्ड लॉट ऑफ डाउट्स, क्या नाम था उसका? श्रेया पिल्लई इज है? सर वो चॉइस सब्जेक्ट अलग होगा ना? हाँ। मे बी। Which subject people have taken mostly? सर हमारे कॉलेज में ओटी लिया है, ये ऑप्टिमाइजेशन ही लिया है पेल्डा कॉलेज में। अच्छा, नहीं, फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिमाइजेशन इज द बेस्ट। Look here. We come to next one. यहाँ पे there is one more part added up जहाँ पे we have to maximize as well. पिछला दोनों क्वेश्चन में we are just been equations given. In this they have told us maximize z is equal to x1 plus 3x2 plus 3x3, and we have subject to x1 plus 2x2 plus 3x3 equal to 4, and we have 2x1 plus 3x2 plus 5x3 equal to 7. Only one more column कि अपने को z भी निकालना पड़ेगा, बाकी everything remains the same. आपको दिख क्या रहेगा कि अपने पास इक्वेशन कितना है? वापस दो, वेरिएबल कितना है? तीन। मतलब डेफिनेटली वी हैव टू हैव वन वेरिएबल बीइंग सेपरेटेड, बराबर? पता नहीं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि वी कैन हैव x10 x20 x30 one by one. This is nothing but non basic variable. We can have first case में x10, second case में x20 और next case में भी है x30, बराबर? Next में we can have basic variable.
Don't you feel अगर x1 is 0, my equation turns out to be 2x2 plus 3x3 equal to 4. Next one is 3x2 plus I have 5x3 is equal to 7. Next case we have taken x2 is 0, matlab we have this is x1 plus we have 3x3 is nothing but 4. And next case we have this is nothing but 2x1 plus we have 5x3 is nothing but equal to 7. We have next case में x3 is 0, this should be x1 plus we have 2x2 is nothing but this is 4. And next time we have nothing but 2x1 plus we have 3x2 is nothing but this should be equal to 7. Do you agree with me? Solve करके we can get the answers for both, right? इसके बाद we have to check whether it is feasible. We have to check whether it is degenerate. लगता है यहाँ पे we have to get z also. पिछले क्वेश्चन में z बोल के कोई भी चीज नहीं था, right? यहाँ पे we have to get z as well. Z is nothing but x1 plus 3x2 plus 3x3. I'll write that full. Z is nothing but this should be x1 plus 3x2 plus 3x3. I want you to tell me the answers one by one. बोलो. पहले केस में what is x2 x3 का आंसर quick? So x2 is minus 1 2. and x3 is 2. x2 is Minus 1, x2 is okay and x3 2. x3 is 2. बराबर. Is it feasible? No, sir. Good morning, guys. Is it feasible? No. Is it degenerate? No. Remember, अगर feasible नहीं है, solution निकालने का मतलब ही नहीं बनता है. Remember, we should find out only the feasible solution. जो feasible है वो निकालने का मतलब ही नहीं, छोड़ दो उसको. What about next one? Quick. x1, x3, anyone? 1 or 1, sir. दोनों 1 1. Yes. Is it feasible? Yes. Is it degenerate? No. What is z का value? x1 plus 3x2 plus x3. x1 का value is 1. x2 is 0. 3x3. 3 into 1 is 3 plus 1 is nothing but 4. We get z as nothing but this should be 4. Is it understandable? Tell me third. Quick. 2 and 1. x1 is 2. 2 and x2 is 1. Is it? Yeah. लगता है दोनों positive. Is it feasible? Yes. Is it degenerate? No. What is z का value? x1 plus 3x2 plus 3x3. x1 plus 3x2. x1 is 2. 3 into 1 is 3 plus 2 is nothing but 5. Let's say z is nothing but this should be 5 here. Tell me, the question said maximize. मतलब what is the answer? लगता है अपना पहला तो feasible था ही नहीं. अगले में z is 4, last में z is 5. लगता है maximum answer is z equal to 5. So we can understand z max is equal to 5 for x1 equal to 2, x2 equal to 1 and x3 equal to 0. What is the last answer? Last answer should be z max is nothing but this should be equal to 5 for x1 is equal to this should be 2, x2 is nothing but 1 and x3 is nothing but equal to 0. This is the way we have done thought justified to everyone, is it? Copy. Any part want me to further explain? Please tell. Sir, if any part, if Bola. in any solution, if the feasible is not, if it's not feasible, then directly the z max, I mean z factor is not considered, right? I mean feasible मतलब आंसर पॉसिबल नहीं है ना. पॉसिबल ही नहीं है, वही मतलब इसलिए हमने जैसा भी यहाँ पे हाँ, feasible मतलब n सोचो आ ना, अगर गया. अपने पास दो मशीन है, हाँ सर. अपने पास दो मशीन है, बराबर. यस अब एक मशीन को मैंने 1 घंटे के लिए वापरा, इसको 1 घंटे के लिए वापरा, यस इसको 2 घंटे के लिए, इसको 1 घंटे के लिए, इसको -1 घंटे के लिए कैसे वापरेंगे? करेक्ट. हाँ बराबर ना. अगर आपने बोला अपने को x1 का 2 ट्रक चाहिए, x2 का 1 ट्रक चाहिए, x1 का 1 ट्रक चाहिए, इसका 1 ट्रक चाहिए, इसका 2 ट्रक और इसका -1 ट्रक, कहां से लाएंगे आप?
करेक्ट तो सर। जहां पे नेगेटिव है वो आंसर इज डिस्क्वालीफाइड, पॉसिबिलिटी, इसलिए बोलते हैं नॉन फीजिबल। फीजिबल but मतलब then- क्या था, जो पॉसिबल है, फीजिबल नहीं है मतलब आंसर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ सर, बट अभी वो एक इनपुट मिल गया, अभी डीजेनरेट का वैसा कुछ हमारा इफेक्ट पड़ता है क्या उस पर? मतलब अभी अभी जैसे हमने आपने बोला ना कि फिजिबल है, फिजिबल नहीं है तो हाँ। फिर डायरेक्टली हमारा नल हो जाता है। हाँ नहीं, डीजेनरेट कहाँ पे पड़ता है, अभी समझो अपने पास कोई मशीन है बराबर, हाँ सर। अभी कोई कोई मशीन रहता है ना जिसको अपन कभी जीरो लोड रखने का नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ लोड होना ही चाहिए बराबर। करेक्ट करेक्ट सर। अभी अगर अपने पास कोई कंपोनेंट जो 5 मशीन में काम करता है और एक अपने को ऑप्टिमम सोल्यूशन मिला जहां पर अपने को मिला x2 = 0, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मशीन को जीरो लोड में चलाने का नहीं, तो वो डीजेनरेट कंडीशन को लेने का नहीं। ओके, तो मतलब अंडरस्टूड? स्पेसिफिक देयर आर कंडीशन। सर्टेन कंडीशन जहां पे अपने को जीरो लोड में नहीं चलाने का है। यस यस यस, गॉट इट। तो जब भी डीजेनरेट आएगा समझ जाने का कि डीजेनरेट है, वो मशीन को चलता है क्या, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ओके। या after completing third one, I want you to have a try on the fourth one completely on your own. Complete third one fully first. सर आपका आवाज कट गया, फोर्थ वाला क्या? After completing third, get me fourth one completely on your own. ओके फाइन। सर आपका एक बात पूछना था। बोलो ना। सर जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं ना, हम्म। वो नॉर्मल ह्यूमन ट्रेडर्स से फास्ट होते हैं क्या वो लोग बहुत? Algo में he doesn't trade at all. The machine trades. ओके Human cannot reach that speed at all. हम्म। पर जिस लेवल पे हम लोग मिस्टेक करके इम्प्रोवाइज करते हैं उससे फास्ट मशीन कर लेगा। तो क्या
उसमें क्या था ना, दे अर्न इन ऑल डायरेक्शन, whether the market is I mean rising or falling. अच्छा हेलो बोलो ना। सर एक भी फिजिबल नहीं है सर. एक भी नहीं है। सॉलर कमिंग नसीब- नेगेटिव. अच्छा है, फिर नसीब खराब है अपना। देखते हैं। सर वो -x1 क्या क्वेश्चन? Which one? Yeah, yeah. Just check the answers for each of those. Anybody got x2 का आंसर? -27/16. -27/16. Okay. X3 anyone? And x 29/8. X3 is 29/8. Okay. x1 is Negative है मतलब -3. feasible, no. Degenerate, no. Answer is not possible. अगला वाला x1 is -3 and 4. how much? 4. 4. Feasible, no. Okay. Last one. x1 is 29 and x2 is -18. Last answer is there is no feasible solution. Sub में we have got some values as negative. लगता नहीं, there is no feasible solution at all. Just verify whether every answer that he has got is correct. Yes sir, correct. Yes, sir. Alasya? Correct.
Yes, sir. सर ऐसा सब फिजिबल नहीं है तो कुछ और नहीं करना पड़ेगा क्या, हम लोग वैसे ही कुछ छोड़ नहीं, देंगे? खत्म। Get me answer for this. How many variables? 4 वेरिएबल, How many equations? 2 इक्वेशन। 2, right? लगता है अगर 2 इक्वेशन है तो वापस आते हैं, वी हैव डन दिस केस बिफोर आल्सो। अगर 2 इक्वेशन है तो मैक्सिमम वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2। लगता नहीं, मतलब मुझे 2 वेरिएबल निकालने का, राइट? कितना केस रहेगा? पहले में वी कैन हैव x1 as 0, x2 as 0। अगले में वी कैन हैव x1 as 0, x3 as 0। वी कैन हैव x1 as 0, दिस इज x4 as 0। लगता है ना x1 का पेयर वी कैन हैव x1 x2 x1 x3 x1 x4। अगला बोलो। अरे कितना केस? जल्दी। x2 x3 is equal to 0. x2 x3, ओके, वी हैव x2 as 0, x3 as 0। और कोई? बस इतना ही? Sir, x2 x4 is equal to 0. ओके, x2 x4 इक्वल टू 0। अरे बाकी जन सो गया क्या? x3 x4 x3 x4 is equal to 0. x3 x4 is equal to 0। I hope you understand there are only 6 cases possible. We have done a similar question before also. I want you to continue further and get the answer for this quick. I repeat again, refer your friends for joining of the batch. Today the first lecture, I'm not taking a very long lecture. Next lecture, whenever we meet, we'll be starting with a method called a simplex method. Simplex is one thing that is a backbone of the subject. सर लेक्चर के बाद फ्री हो गया सर? नहीं, अच्छा पैसा ओके। दूंगा। अरे बोलो बोलो। अरे ऐसे थोड़ा बात मस्ती कर रहा करना था, है बोलो बोलो। लेक्चर के बाद, थोड़ा बात करना है सर। हाँ तो करेंगे ना। किस टाइप का बात? नहीं सर, थोड़ा मैथ एंड मार्केट रिलेटेड सर। तो मुझे कॉल करो ना। हाँ वही सर, इसलिए कॉल करके बात करेंगे। तो एक काम करो, मुझे 9:30 कॉल करो। आई विल रीच होम बाय दैट टाइम। ओके सर। चलेगा? हाँ सर। चलेगा ना? हाँ ओके, नो प्रॉब्लम।
Anybody through with the answer? In the first case, I think you should get x3 and x4 के values. Anybody could get it? X3 is 2 and X4 is -1. x3 is 2 and x4 is -1. Is it feasible? No. Is it degenerate? No. अगला. X2 is 1/2 and X4 is 0. x2 is 1/2, x4 is 0. Is it feasible? Yes. Is it degenerate? Yes. Next, sir, X2 is 1/2. और तू रफ पर रफ निकाले बे, x2 कितना है? 1/2. ओके, x3 0. पक्का? मुझे दोनों ऐसा same है? बाद में क्रॉस चेक कर लो सर. Zero, sir, zero. x2 is 1/2 और x3 is 0. Yes, sir, correct. ठीक है. और again feasible, this is degenerate, yes. x1 x4 So X1 is एक मिनट 8/3. रुक, बाकी लोग को बोलने दे, रुक. 8/3 and -7/3. how much 8/3 okay. -7/3. Negative, is it feasible? No. Is it degenerate? No. कोई भी 0 नहीं. Next one, -2. x1 x3 how much? -2. x1 is minus, 2. x3 7/2. feasible? No, Feasible? sir. No. Degenerate? No. Last one. Zero and half. 0.5. लगता नहीं feasible है. Yes. 0 है degenerate. Yes. There was no condition for Z, so there is no maximum or minimum at all. Just verify everybody gets an answer same as this. Any changes anybody not getting, please tell. It's a Tuesday evening batch. We'll be meeting on every Tuesday evening 5:30 to like 8:30. Today being the first lecture and the batch may expected to grow. Stock market crash मतलब? अरे यार कुछ नहीं जान दे. सर हाँ बोलो बोलो. सर मैं ऐसा प्लान कर रहा था कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हाँ. मैं I'll start my career as a stock trader. Okay. So what's your suggestion on that? It's a career. What bad? But Yeah, why because should you be only a trader? Huh? हाँ सर. Why you should be only a trader? ट्रेडर इन्वेस्टर बोथ दोनों कह रहे क्या? नहीं, I want you to work as an engineer as well, earn money from there, and grow your money in market. Okay. देखो 0 का डबल 0 ही होता है ना, 0 का ट्रिपल भी 0 ही होता है ना. पहला पैसा तो आना होता है डबल करने के लिए. बराबर ना. So keep on working as an engineer, whatever, and you can always increase your corpus. Okay. मतलब suppose as an engineer, if you're earning, suppose take an example 20,000 a month, a raw example there, lot more than that we learn. So कैसा है कि मतलब and suppose say 20,000 a month over a period of 1 year becomes 2.4 lakhs. So अगर if you invest, तो कैसा है at one point of time what should happen is कि your stock market should give you return same as whatever you earn a salary. Okay. तो मतलब तुम्हारा डबल चालू है ना. Because in that case you can take risk because you're not depending on the stock market. कल को मार्केट क्रैश हो तो हम भूखा नहीं मरेंगे ना.
हाँ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? स्टेबल जॉब तो होगा एटलीस्ट। हाँ मतलब यू कैन टेक रिस्क ना, अगर खाली उस पर तो यू हैव टू ऑलवेज प्ले वेरी वेरी सेफ, और जितना रिस्क लेगा उतना कमाई ज्यादा ना, जितना सेफ करेगा उतना कमाई कम। तो यू कैन प्ले रिस्क फ्री ओनली व्हेन यू हैव अदर स्टेबल इनकम देयर विद यू ना। ये अपन बाद में बात कर रहे हैं, पब्लिक को भी डिस्टर्ब करने का। चलो गाइस, we'll stop for today. I'll once again request you all to let your friends join out the batch next lecture. Next lecture will be starting with the most important topic of the subject called as simplex method. We're not starting simplex today. We have done the subject till simplex method. Next lecture they will be starting simplex. Simplex is one thing that is the backbone of the subject. I don't want anybody to join up late at all on next Tuesday. Next Tuesday, so the batch will run 5:30 to like 8:30 only.